नमस्ते बच्चों, लीप फॉरवर्ड से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा। और हर सप्ताह हम लेकर आते हैं खास आप सभी बच्चों के लिए मजेदार कहानियां और कुछ नए शब्दों की श्रृंखला। तो फिर एक बार मैं आप सभी का आज के इस कहानी सत्र में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज आपके साथ का हमारा ये चौथा सत्र है। पिछले सत्र में हमने लाइब्रेरी की किताब से द फार्मर्स वेल और द गोल्डन टच ऑफ मिडास ये कहानियां देखी। उन कहानियों में उपयोग किए गए कठिन शब्दों को उनके अर्थों के साथ समझा। साथ ही फ्लैश कार्ड के माध्यम से फार्मर, कोर्ट, गॉड, हैंड, फिंगर इन शब्दों से संबंधित कुछ अन्य शब्दों को देखा और उनके अर्थ भी समझे। आज के इस सत्र में हम फ्लैश कार्ड देखने जा रहे हैं। हम लाइब्रेरी की किताब से दो दिलचस्प कहानियां भी सुनेंगे और हम उस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न भी देखेंगे। इस प्रारूप के प्रत्येक सत्र में हम कई नई और दिलचस्प बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अंग्रेजी का जादुई सफर। तो चलिए लाइब्रेरी की किताबों से शुरुआत करते हैं। हमारी आज की कहानी है टू कैट्स एंड अ मंकी। Once upon a time, there lived two cats near a village. They were close friends. They played together, ate together, slept together, and went everywhere together. One day, they realized that there was not enough food left for both of them. So they decided to go out in search of food. After a while, they found a loaf of bread. They both wanted the bread as they were very hungry. They began to fight over it. One cat said, "I found it first. Now it's mine." Another cat said, "No, I found it first. Give it to me." A monkey who was sitting on the top of the nearby tree was watching this fight. He thought it would be great if I get that bread. It looks so yummy. He came to the cats and said, "Friends, why are you quarreling? I will settle your fight." Both cats agreed to his proposal. The monkey split the bread into two uneven pieces. One piece was large and the other piece was small. So he ate a portion from the larger piece. But this made the other piece larger. So he took a bite from the other piece and slowly, in this manner, the monkey ate the whole loaf of bread. It climbed back up the tree, laughing at the cats. Two foolish cats weren't able to eat anything. Moral of the story is when two people fight, the third one always gets profited. अभी हम क्या करेंगे? अभी इस कहानी का हर एक अंग्रेजी वाक्य में पढ़ूंगी और उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टू कैट्स एंड अ मंकी। दो बिल्लियां और एक बंदर की कहानी। Once upon a time, there lived two cats near a village. एक बार की बात है, एक गांव के पास दो बिल्लियां रहती थी। They were close friends. वो बहुत अच्छी दोस्त थे। They played together, ate together, slept together, and went everywhere together. वो दोनों एक साथ खेलती थी, एक साथ खाती थी, एक साथ सोती थी और हर जगह एक साथ जाती थी। One day, they realized that there was not enough food left for both of them. So they decided to go out in search of food. After a while, they found a loaf of bread. एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि उन दोनों के लिए पर्याप्त भोजन नहीं बचा है। इसलिए उन्होंने भोजन की तलाश में बाहर जाने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पाव का टुकड़ा मिला। They both wanted the bread as they were very hungry. हंगरी यानी कि भूखे। वे दोनों पाव का टुकड़ा चाहती थी क्योंकि वे बहुत भूखी थी। They began to fight over it. Fight यानी झगड़ना। इस पर वे दोनों झगड़ने लगी। One cat said, "I found it first. Now it's mine." उस बिल्ली ने क्या कहा? मुझे ये सबसे पहले दिखा है तो ये अभी मेरा है। Another cat said, "No, I found it first. Give it to me."
दूसरी बिल्ली ने कहा, नहीं, ये मुझे पहले मिला है तो मुझे दे दो। A monkey who was sitting on the top of the nearby tree was watching this fight. He thought, it would be great if I get that bread. It looks so yummy. एक बंदर जो पास के पेड़ के ऊपर बैठा था, ये लड़ाई देख रहा था। बंदर ने सोचा कि अगर मुझे वो पाव का टुकड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। He came to the cats and said, Friends, why are you quarreling? Quarreling यानी झगड़ा करना। I will settle your fight. बंदर क्या बोलता है? दोस्तों, तुम लोग क्यों झगड़ा करती हो? मैं तुम्हारा झगड़ा मिटाता हूँ। Both cats agreed to his proposal. दोनों बिल्लियों ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। The monkey split the bread into two uneven pieces. Uneven यानी कि असमान। बंदर ने उस पाव के टुकड़े का दो असमान टुकड़ों में बंटवारा किया। One piece was large and the other piece was small. So he ate the portion from the larger piece. अभी यहाँ पे एक टुकड़ा बड़ा था और दूसरा टुकड़ा छोटा था, इसलिए उसने बड़े टुकड़े में से एक हिस्सा खा लिया। But this made the other piece larger, so he took a bite from the other piece, and slowly in this manner the monkey ate the whole loaf of bread. लेकिन इससे दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया, इसलिए उसने दूसरे टुकड़े से भी एक और टुकड़ा खा लिया और इस तरह धीरे धीरे बंदर ने पूरा पाव का टुकड़ा खा लिया। It climbed back up the tree, laughing at the cats. वो बिल्लियों पर हंसते हुए वापस पेड़ पर चढ़ गया। Two foolish cats weren't able to eat anything. Foolish यानी कि मूर्ख। दोनों मूर्ख बिल्लियां कुछ भी खाने में सक्षम नहीं हो पाई। Moral: When two people fight, the third one always profits. तात्पर्य: जब दो लोग लड़ते हैं तो फायदा हमेशा तीसरे का ही होता है। बच्चों, अब आपको इस कहानी का मतलब समझ में आया है ना? अभी आपको एक खेल खेलना है। इस खेल में मैं हर एक वाक्य पढ़ूंगी और उसका हिंदी अर्थ आपको आपके वर्ग मित्रों के साथ साझा करना है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। Two cats and a monkey. Once upon a time, there lived two cats near a village. They were close friends. They played together, ate together, slept together, and went everywhere together. One day they realized that there was not enough food left for both of them. So they decided to go out in search of food. After a while, they found a loaf of bread. They both wanted the bread as they were very hungry. They began to fight over it. One cat said, "I found it first, now it's mine." Another cat said, "No, I found it first, give it to me." A monkey who was sitting on the top of a nearby tree was watching this fight. He thought, it would be great if I get that bread. It looks so yummy.
He came to the cats and said, "Friends, why are you quarreling? I will settle your fight." Both cats agreed to the proposal. The monkey split the bread into two uneven pieces. One piece was large and the other piece was small, so he ate the portion from the larger piece. But this made the other piece larger. So he took a bite from the other piece, and slowly, in this manner, the monkey ate the whole loaf of bread. It climbed back up the tree, laughing at the cats. Two foolish cats weren't able to eat anything. Moral: when two people fights, the third one always gets profited. तो बच्चों, आपको दो बिल्लियां और एक बंदर की कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? आइए अब इस कहानी में से कुछ शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है हंग्री, HUNGRY, हंग्री यानी कि भूखा। दूसरा शब्द है रियलाइज्ड, REALIZED, रियलाइज्ड यानी एहसास हुआ। अगला शब्द है LOAF, लोफ, लोफ यानी पाव का टुकड़ा। अगला शब्द है इनफ, ENOUGH, इनफ यानी कि पर्याप्त। अगला शब्द है स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट, और स्प्लिट का अर्थ है विभाजित करना। अगला शब्द है पोर्शन, PORTION, पोर्शन यानी कि भाग। अगला शब्द है प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट यानी कि फायदा। अगला शब्द है प्रपोजल, PROPOSAL, प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव। अगला शब्द है क्वारलिंग, QUARRELING, क्वारलिंग यानी कि झगड़ा। अगला शब्द है सेटल, SETTLE, सेटल यानी निपटारा करना। अगला शब्द है टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर यानी कि एक साथ। अगला शब्द है अनइवन, UNEVEN, अनइवन यानी कि असमान। अब जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान ही गए हैं, तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें और आपको उनके उत्तर मुझे इस पैराग्राफ की सहायता से देने होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। What did the two cats find while searching for food? A loaf of bread. B, a basket of fruits. C, a bottle of milk. Next question. Why did the cats start fighting? A, they disagreed on where to eat. B, there was only one piece of bread. And C, they wanted to play a game. Next question. Who proposed to settle the fight between the two cats? A, a wise owl. B, a clever dog. Or C, a mischievous monkey. Next question. How did the monkey manage to eat the entire loaf of bread? A,
He tricked the cats and took it away. B. He divided it into 2 equal parts. And C. He kept taking bites from one piece until he finished it. Next question. What is the moral of the story? A. Cats should not fight over food. B. Monkeys are smarter than cats. And C. When 2 people fights, the third one always gets profited. अरे वाह, आपने सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। चलिए अगले भाग पर चलते हैं। अब हम देखेंगे फ्लैश कार्ड्स। हमारा पहला फ्लैश कार्ड है फ्लैश कार्ड नंबर 1। DOOR, डोर मतलब दरवाजा। डोर बेल, DOORBELL, डोर बेल, घर के बाहर जो घंटी होती है उसे डोर बेल कहते हैं। LOCK, लॉक, लॉक मतलब ताला। लॉक के नीचे है डोर मैट, DOORMAT, डोर मैट यानी कि पायदान। डोर मैट हम बाहर क्यों रखते हैं? जब हम बाहर से आते हैं तो हमारे पैरों पर धूल मिट्टी बैठ जाती है, तो इसे पोंछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोर मैट के नीचे शब्द है लैच, LATCH, लैच मतलब कुंडी। लैच के बाद है की, की मतलब चाबी। Let's go to the next card, which is our flashcard number 2. India, INDIA, इंडिया मतलब भारत देश। देश को इंग्लिश में कहते हैं कंट्री, COUNTRY, कंट्री। कंट्री के राजधानी को कैपिटल कहते हैं, CAPITAL, कैपिटल। और इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं। राज्य को इंग्लिश में कहते हैं स्टेट, STATE, स्टेट। एक हो तो स्टेट और बहुत सारे हो तो स्टेट्स, STATES। हर राज्य में जिले होते हैं। जिले को इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, DISTRICT। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? तालुका। और तालुका में क्या होते हैं? गांव। जी हाँ, और उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? वेरी गुड, विलेज, VILLAGE, विलेज। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्लैश कार्ड की तरफ, जो है हमारा फ्लैश कार्ड नंबर 3। पहला शब्द है MOUTH, माउथ। माउथ मतलब मुंह। अगला शब्द है टंग, TONGUE, टंग मतलब जीभ। टंग के बाद शब्द है टीथ, TEETH, टीथ मतलब दांत। एक दांत हो तो उसे कहते हैं टूथ, और एक से ज्यादा दांत हो तो उसे कहते हैं टीथ। टीथ के नीचे है गम्स, GUMS, गम्स मतलब मसूड़ा। लास्ट वर्ड है जॉ, JAW, जॉ मतलब जबड़ा। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्लैश कार्ड की तरफ, जो है फ्लैश कार्ड नंबर 4। MILK, मिल्क मतलब दूध। उसके आगे है बटर, बटर मतलब मक्खन। बटर के नीचे शब्द है बटर मिल्क, बटर मिल्क यानी कि छाछ। बटर मिल्क के नीचे शब्द है डेयरी। डेयरी मतलब दूध के संबंध में जो भी चीज आती है और वो जहाँ मिलती है उसे कहते हैं डेयरी। जैसे मुर्गी पालने के व्यवसाय को कहा जाता है पोल्ट्री, POULTRY, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन जहाँ किया जाता है ऐसी जगह। दूध के मामले में जो भी कुछ है उसे कहा जाता है डेयरी। डेयरी के नीचे शब्द है चर्न, CHURN, चर्न मतलब मंथन करना। हम माखन बनाने के लिए चर्न करते हैं। लास्ट वर्ड इज कर्ड, CURD, कर्ड मतलब दही। अभी हमने 6 वर्ड्स देखे, मिल्क, बटर, बटर मिल्क, डेयरी, चर्न एंड कर्ड। अभी हम बढ़ेंगे हमारे अगले फ्लैश कार्ड की तरफ, जो है हमारा फ्लैश कार्ड नंबर 5। हमारा पहला शब्द है ऑर्नामेंट, ORNAMENT। ऑर्नामेंट मतलब
आभूषण या फिर अलंकार। अगला शब्द है बैंगल। बैंगल मतलब चूड़ी। अगला शब्द है नेकलेस। NECKLACE। नेकलेस यानी कि गले का हार। उसके नीचे है एंकलेट। एंकलेट मतलब पायल। पायल को एंकलेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एंकल पे पहनी जाती है। चलो आपके लिए एक छोटा सा एक्सरसाइज। पैर के किस हिस्से को एंकल कहा जाता है ये आपको मुझे बताना है। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है नोज रिंग। NOSERING। नोज रिंग यानी कि नथुनी। आज के दिन का हमारा आखिरी शब्द है ईयरिंग। EARRING। ईयरिंग यानी कि कान की बाली। शब्दों का उचित उच्चारण और अर्थ तो हमने देख लिया, तो चलिए अब लाइब्रेरी की पुस्तक से एक और कहानी देखते हैं। इस कहानी का नाम है द गोल्डन एग। Once upon a time, a farmer had hen that laid one golden egg daily. The egg provided enough money for the farmer and his wife to support their daily needs. The farmer and his wife continued to be happy for a long time. But one day, the farmer thought, why should we take just one egg a day? Why can't we take all of them at once and make a lot of money? The farmer told his wife his idea, and she foolishly agreed. Then the next day, as the hen laid its golden egg, the farmer was quick with a sharp knife, and he killed the hen and cut its stomach open, hoping to find all its golden eggs. But when he opened the stomach, there was nothing inside. The farmer quickly realized his foolish mistake and cried over his lost resource. As the days went on, the farmer and his wife became poorer and poorer. Moral: never act before you think. अभी हम क्या करेंगे? अभी इस कहानी का हर एक अंग्रेजी वाक्य में पढ़ूंगी और उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे आज की कहानी का नाम है द गोल्डन एग यानी कि सोने के अंडे। Once upon a time, a farmer had a hen that laid one golden egg daily. एक बार की बात है, एक किसान को एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली, जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। The egg provided enough money for the farmer and his wife to support their daily needs. अंडे से किसान और उसकी पत्नी को उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध मिल जाता था। The farmer and his wife continued to be happy for a long time. किसान और उसकी पत्नी बहुत दिनों तक सुखी रहे। But one day the farmer thought, why should we take just one egg a day? लेकिन एक दिन किसान ने सोचा, हमें प्रतिदिन केवल एक अंडा क्यों लेना चाहिए? Why can't we take them all at once and make a lot of money? हम उन सभी को एक साथ क्यों नहीं ले सकते और ढेर सारा पैसा क्यों नहीं कमा सकते? The farmer told his wife his idea, and she foolishly agreed. किसान ने अपनी पत्नी को अपना विचार बताया और वो मूर्खतापूर्वक सहमत हो गई। Then the next day, as the hen laid its golden egg, the farmer was quick with a sharp knife, and he killed the hen. फिर अगले दिन जैसे ही मुर्गी ने अपना सुनहरा अंडा दिया, किसान ने तुरंत एक तेज चाकू चलाया और उसने मुर्गी को मार डाला। And cut its stomach open, hoping to find all its golden eggs. But when he opened the stomach, there was nothing inside. और उसके सभी सोने के अंडे पाने की उम्मीद में उसने पेट काट दिया, लेकिन जब उसने पेट खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। The farmer quickly realized his foolish mistake and cried over his lost resource. किसान को तुरंत अपनी मूर्खतापूर्ण गलती का एहसास हुआ और वो अपने खोए हुए संसाधन पर रोने लगा। As the days went on, the farmer and his wife became poorer and poorer. जैसे जैसे दिन बीतते गए, किसान और उसकी पत्नी और अधिक गरीब होते गए। Moral: never act before you think.
और इस स्टोरी का और इस कहानी का तात्पर्य क्या है? बिना सोचे समझे कोई भी कार्य ना करें। बच्चों, अब तुम्हें इसका मतलब समझ में आया ना? तो अब एक दूसरे को ये मतलब समझाओ, जैसे आपने पहले कहानी के वक्त किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द गोल्डन एग। Once upon a time, a farmer had a hen that laid one golden egg daily. The egg provided enough money for the farmer and his wife to support their daily needs. The farmer and his wife continued to be happy for a long time. But one day the farmer thought, why should we take just one egg a day? Why can't we take them all at once and make a lot of money? The farmer told his wife his idea and she foolishly agreed. Then the next day, as the hen laid its golden egg, the farmer was quick with a sharp knife and he killed the hen. And cut its stomach open, hoping to find all its golden eggs. But when he opened the stomach, there was nothing inside. The farmer quickly realized his foolish mistake and cried over his lost resource. As the days went on, the farmer and his wife became poorer and poorer. Moral: never act before you think. तो बच्चों, आपको सोने के अंडे की कहानी कैसी लगी? क्या आपको मजा आया? आइए अब इस कहानी में से कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है कंटिन्यूड। CONTINUED। कंटिन्यूड का मतलब है चालू रखा। दूसरा शब्द है आइडिया। IDEA। आइडिया यानी कि विचार। अगला शब्द है लॉस्ट। LOST। लॉस्ट। लॉस्ट यानी कि घुमा दिया। अगला शब्द है थॉट। THOUGHT। थॉट यानी कि विचार किया। अगला शब्द है शार्प। SHARP। शार्प यानी धारदार या फिर नुकीला। अगला शब्द है प्रोसीडेड। PROCEEDED। प्रोसीडेड यानी कि आगे बढ़ना। अगला शब्द है प्रोवाइडेड। PROVIDED। प्रोवाइडेड यानी कि उपलब्ध कराया। अगला शब्द है क्विकली। QUICKLY। क्विकली यानी कि तुरंत। अगला शब्द है रियलाइज्ड। REALISED। रियलाइज्ड यानी कि एहसास हुआ। अगला शब्द है रिसोर्स। RESOURCE। रिसोर्स यानी कि संसाधन। अगला शब्द है स्टमक। STOMACH। स्टमक यानी कि पेट। अगला शब्द है सपोर्ट। SUPPORT। सपोर्ट यानी कि आधार। अगला शब्द है नाइफ। KNIFE। नाइफ यानी कि चाकू। बच्चों, अब जब आप इन शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ जान गए हैं, तो आइए इस कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न देखें और आप उनके उत्तर मुझे इस पैराग्राफ की सहायता से देंगे। हमारा पहला सवाल है,
What did the hen provide to the farmer and his wife daily? और इसके लिए आपके पर्याय है A. Silver eggs, B. Golden eggs और C. Diamond eggs. अगला सवाल है Why did the farmer decide to kill the hen? A. He wanted to eat it for dinner. B. He hoped to find all its golden eggs at once. Or C. The hen was sick. अब जाते हैं सवाल 3 पे। हमारा तीसरा सवाल है What did the farmer find when he opened the hen's stomach? पर्याय है 1. Golden eggs, B. Silver coins और C. Nothing. अगला प्रश्न है How did the farmer feel after realizing his mistake? A. Happy, B. Proud और C. Regretful. और हमारा आखिरी सवाल है What is the moral of the story? A. Greed leads to downfall. B. Chickens are valuable pets. और C. Always trust your instincts. तो दोस्तों, आपको आज का सेशन कैसा लगा? आपको ये पक्का पसंद आया होगा। अगर आपको ये आज का सत्र पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में आपके विचार लिखना ना भूलें। आज के सत्र में हमने फ्लैश कार्ड के शब्दों को देखा और लाइब्रेरी की किताब से 2 नई कहानियां पढ़ी। आपने इस कहानी पर आधारित कई प्रश्नों के उत्तर भी दिए। आज के लिए हमारा ये सत्र यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सत्र में। अगले सत्र में हम और भी नई कहानी और फ्लैश कार्ड के शब्दों के साथ आपको मिलेंगे। तब तक खेलते रहिए, बढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।